Let us start how to calculate the arithmetic mean in individual series. In case of individual series, arithmetic mean can be calculated by direct method and by shortcut method. Direct method and shortcut method. Mean can be calculated by direct method and shortcut method. So we have two methods for calculating arithmetic mean in individual series. Shortcut method. हमारे पास दो मेथड हैं मीन कैलकुलेट करने के लिए इंडिविजुअल सीरीज में. जब इंडिविजुअल सीरीज हो तो दो मेथड. तो क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे. The pocket money of 10 students are given. You write down the question. The pocket money of 10 students are given. We have to find out mean. Find out mean. क्या है पॉकेट मनी? पॉकेट मनी तो घर वाले बच्चों को देते हैं खर्च करने के लिए. जाओ आपको स्कूल जाना है, 10 रुपया, 5 रुपया, 20 रुपया. 15, 20, 30, 22, 25, 18, 40, 50, 55 and 65. 55 and 65. So these are our figures for calculating mean. These are 10 students. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. We have 10 students whose pocket money is given. We have to calculate the average pocket money. Average pocket money or mean value of these data. By direct method, the mean or x bar, if we take it as x, these are the values of x, this x bar is equal to sum of x divided by number of values in x. X का sum क्या है? That is sum of items divided by number of items. It is sum of items and number of items. Through direct method, we must understand and keep in mind that mean is equal to sum of items divided by number of items. This is summation. Sum of items divided by number of items. So therefore x bar is equal to, we have to calculate the sum of it. हमें sum इसका निकालना है. Summation of x क्या आएगा? Summation of x. Summation of x देख लीजिए. इसको हम sum करेंगे. नंबर तो हमें पता है, n is equal to 10. 1, 2, 3. Sorry. 5 गए 7, 5 गए 12, 8 गए 20, 5 गए 50, तो 5 गए 30. 0. 3 तो कैरी आ गया. 3 आ गए 4, 4 गए 6, 3 गए 9, 9 तो गए 10, 12, 13, 14, 4 गए 18, 18 5 गए 30, 5 गए 28, 28 गए 34. 340. 340 is the sum and n is 10. Thus, summation of x is 340 and n is 10. Therefore, x bar is equal to, ये 0 और ये 0, 34 is average pocket money. Therefore, average pocket money is equal to 34 rupees.
34 rupees is average pocket money. So this is how to calculate the mean in the individual series by direct method. So first formula for direct method is summation of x divided by n. Summation of x divided by n. Sum of items divided by number of items. Now the next method is direct method. अब हम ये सॉरी डायरेक्ट मेथड है. अब हमारे पास शॉर्टकट मेथड. नेक्स्ट मेथड इज शॉर्टकट. ये हो गया अंडरस्टैंड. अगर ये हमारी सीरीज है इंडिविजुअल सीरीज विदाउट फ्रीक्वेंसी, तो इसमें आसान है मीन को कैलकुलेट करना. इसको सम करो डिवाइड बाय नंबर, सम डिवाइड बाय नंबर, इट इज 34. सो 34 इज मीन. ये हो गया. यस सर. ये अंडरस्टैंड हो गया. बिल्कुल. अगर ये इंडिविजुअल सीरीज है, सम निकालो और नंबर देखो. नंबर 10 है, तो सम इसका निकालना है. सम हो गया 340. अगर कोई भी क्वेश्चन हो, मीन इज सम ऑफ आइटम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स. अब शॉर्टकट मेथड, इसी क्वेश्चन को हम शॉर्टकट मेथड करेंगे. इसी क्वेश्चन को फिर मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगा घर के लिए, उसमें आप डायरेक्ट मेथड लगाना है और शॉर्टकट मेथड लगाना. आसान सा काम है. अब शॉर्टकट मेथड. शॉर्टकट मेथड में मीन बराबर होता है यस ए प्लस summation d divided by n. What is this a? A is assumed mean. D is x minus a. Deviation is from assumed mean. Yes. तो इसमें हमें निकालना है d. समेशन ऑफ d और a. d होता है बराबर x minus a. लेकिन d हमारा तब तक नहीं बनेगा जब तक हम a को निकालेंगे. x हमारे पास वैल्यू है. x हमारे पास वैल्यूज, x के वैल्यूज हमारे पास हैं, लेकिन x पे काम नहीं चलेगा जब तक हमारे पास a होगा. a मीन्स एज्यूम्ड मीन. किसी भी वैल्यू को उठाइए और उसको मीन बनाइए, कंसिडर कर दीजिए, एज्यूम कर दीजिए. ये मीन है हमारा. फर्जी मीन, डमी मीन, एज्यूम्ड मीन, जिसको हमने एज्यूम किया है, सपोज किया है. इसमें से किसी भी वैल्यू को, जनरली इसमें टेक्निक ये है कि एज्यूम्ड मीन को उठाने के लिए हम ना सबसे कम वैल्यू को उठाएंगे ना सबसे ज्यादा वैल्यू को उठाएंगे. अंडरस्टैंड? जो लोवेस्ट वैल्यू है उसको भी एज्यूम्ड मीन नहीं उठाएंगे, जो सबसे ज्यादा वैल्यू है उसको भी नहीं उठाएंगे. तो जो बिटवीन वाला वैल्यू है उसको हम एज्यूम करेंगे ये मीन है, बिकॉज मीन इज सेंट्रल वैल्यू. अगर मैं आपको बताऊंगा ये इस बोर्ड का एक हिस्सा है, ये एक हिस्सा है, यहाँ एक हिस्सा है, तो यहाँ लास्ट हिस्सा है, ये स्टार्ट है, ये एंड है. अगर मैं आपको बताऊंगा मीन कौन सा है, आप नहीं बताओगे कि दिस कॉर्नर इज मीन और दैट कॉर्नर इज मीन. तो यू विल गो समवेयर इन द सेंटर. वो 1 इंच इधर उधर भी हो सकता है, लेकिन प्रूडेंसी और रैशनैलिटी यही है कि आप सेंटर में ही जाओगे. ये सेंट्रल वैल्यू. इसीलिए फॉर एग्जांपल इसका लोवेस्ट वैल्यू क्या है? लोवेस्ट वैल्यू? शाबाश. लोवेस्ट वैल्यू क्या है इसमें? लोवेस्ट वैल्यू 15 है. यस. हाईएस्ट वैल्यू कौन सा है? 65. इनके दरमियान कौन सा वैल्यू है? फॉर एग्जांपल देयर इज 30, 15 और 65 में 30 है, 40 है, 18 है. ये इसमें हम कुछ निकालिए. फॉर एग्जांपल हम एज्यूम्ड मीन ये उठाएंगे, 30 हमारा एज्यूम्ड मीन. लेट इट बी, इट इज 30. हमने इन दो के दरमियान कोई वैल्यू उठाया. आप 22 भी उठा सकते हो, 25 भी उठा सकते हो, 18 भी उठा सकते हो, किसी 40 को भी उठा सकते हो. फॉर एग्जांपल हमने 30 को उठाया. अब आसान है डी को निकालना. डी इज x माइनस a. a तो एज्यूम्ड मीन है, x का वैल्यू यहाँ ये है, x का वैल्यू यहाँ ये है. हर जगह x का वैल्यू चेंज होता है.
यहाँ x का Yes, वैल्यू sir. 15 है, यहाँ x का वैल्यू 15 है। 15 माइनस 30 ये कितना बन गया? -15. -15। अच्छा, इसी तरह 20 माइनस 30 ये कितना बन गया? -10. -10। शाबाश। 30 माइनस 30 इट इज 0। 22 माइनस 30 -8, ठीक है। 25 माइनस 30 इट इज -5। 18 माइनस 30 इट इज -12। 40 minus 30 it is 10. 50 minus 30 is 20. 55 minus 30 it is 25. 65 minus 30 it is 35. ये बन गया हमारा deviations D। क्वेश्चन क्या है Yes, हमारा? sir. क्वेश्चन क्या है? ये फार्मूला क्या है हमारी? फार्मूला है हमारी a प्लस समेशन d डिवाइड बाय n। n तो हमारे पास 10 है जो ऑलरेडी हमें पता है। These are 10 स्टूडेंट्स, है ना? 10 तो है ना हमारे पास, ये है ना 10 स्टूडेंट्स। अब हमें क्या निकालना है? समेशन डी। सो ए भी हमारे पास आ गया, एन भी हमारे पास बन गया। अब समेशन डी, इसको आप टोटल कर दो, इसको आप टोटल कर दो। माइनस वालों का अलग कर दो, प्लस वालों का अलग कर दो। शाबाश बिल्किस। माइनस वालों का क्या बनता है? रफ करेंगे हम। 15 तो 10 गए 15, 8 गए 30, Yes, sir. 30 तो 5 गए 38, 38 गए 40, 10 गए 5, माइनस वही द्राय 5 इधर ना। Yes, sir. 15 तो 10 Yes, sir. 8 गए 30, 5 गए 38, 40, 10 गए 5 प्लस वही क्या द्राय 20 10 गए 30, 30 तो 50 5 गए 55, 55 तो 5 गए 60, 60 गए 9 द्राय प्लस नमतन वालो 5 इतको तो रूट 40 गो। डी हमारा बन गया 40। डी हमारा बन गया 40. समझ आ गया? Yes, sir. यस। Yes, sir. वैल्यूज उसमें लगाइए, फार्मूला में लगाइए। देयरफॉर एक्स बार बराबर है, एक्स बार बराबर है ए है 30 प्लस समेशन डी क्या है 40 डिवाइड बाय एन है 10, एन है 10। देयरफॉर एक्स बार बराबर है 30 प्लस 10 1 is 10, 10 4 10 का 10, 10 टू 40, ये है ना 30 प्लस 4। देयरफॉर एक्स बार बराबर है 30 प्लस 4 इट इज 34। अभी डायरेक्ट मेथड में क्या निकला था? वहां भी 34 निकला था। 34. शॉर्टकट मेथड में भी 34 निकला. ठीक है। Yes, So sir. this is how to calculate the arithmetic mean or mean from the individual series। अगर हमारे पास सीरीज इंडिविजुअल है तो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे मीन? वी हैव टू मेथड्स, डायरेक्ट मेथड एंड शॉर्टकट मेथड। डायरेक्ट मेथड में होता है एक्स बार बराबर एक्स बार मीन्स मीन, Yes, sir. sum of items divided by number of items, Number of items. summation of x divided by n। और Yes, sir. शॉर्टकट मेथड में x बार बराबर है a प्लस समेशन d Commission of n। deviation. yes, d is deviations, a is assumed mean। नहीं. yes, अगर मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगा घर में, आप दोनों मेथड, पहले डायरेक्ट मेथड लगाइए फिर शॉर्टकट मेथड लगाइए। डायरेक्ट मेथड में क्या Yes, आएगा, sir. शॉर्टकट मेथड में आएगा। अब आएगा ना, बताएगी ना, Yes, sir. बताएगी Yes, ना। sir. यस, Yes, sir. तो मैं दे दूंगा आपको क्वेश्चन। जो मैंने वीडियोस डाले हैं उनसे नोट बनाना। व्हाट इज सेंट्रल टेंडेंसी वो डाला, व्हाट इज अरिथमेटिक मीन, वो टाइप्स ऑफ अरिथमेटिक मीन, उससे जो मैंने वीडियोस डाले हैं उनसे नोट बनाना आप। तो ये भी नोट कॉपी पे लिखना, कॉपी मेंटेन करना डेली बेस पे। Okay, sir. Yes. Students of 11th class secured marks in statistics paper। Students
स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है स्टूडेंट्स नजर आता है ऑफ Yes, sir. 11th class secured following marks in statistics. In statistics, find out mean by direct and shortcut method. By direct and shortcut Shortcut method. method. Yes, ये है मार्कस, लिख लीजिए मार्कस 20, 44, 65, 28, 45, 67, 30, 50, 68, 39, 39, 39, कहां पहुंच गया 39, 53, 70, 40, 60 and 75, 60 and 75. लिख लीजिए क्या क्या मैंने लिखा। एक लिखा 20, फिर मैं रिपीट करूंगा 20, 44, 65, 28, 45, 67, 30, 50, 68, 39, 53, 70, 40, 60 and 75. आपको मीन निकालना है बाय डायरेक्ट मेथड एंड बाय शॉर्टकट मेथड। ठीक है, Method. हाँ कल संडे है। Yes, sir. कल संडे है, मुझे लग रहा है और एक क्वेश्चन में दे दूंगा आप। ठीक है, Okay, sir. और एक एक्सरसाइज में दे दूंगा। क्वेश्चन है हमारे पास, द मंथली इनकम ऑफ 8 families is given below. Monthly, question number 2, monthly income of 8 families is given below. Find out arithmetic mean या sample arithmetic mean. जनरली यही देखना है कि ये सीरीज किस किस्म की है। मैंने आपको बार बार बताया कि वो सीरीज जिसमें एक ही कॉलम हो, फ्रीक्वेंसी नहीं हो, वैल्यूज अलग अलग हैं, तो उसको हम कहते हैं इंडिविजुअल सीरीज। Individual series. ये यस, यहां मैं मंथली इनकम लिखूंगा, मंथली इनकम इन रुपीज 70, ये ऐसे में हॉरिजॉन्टली लिखूंगा, फिर आप खुद बनाना ये ऐसे 70, 10, 500, 75, 13, 250, 8 and 42. सो ये है क्वेश्चन, ये है दूसरा क्वेश्चन, ये है दूसरा क्वेश्चन, ये है पहला क्वेश्चन। सो इसमें ऑफ डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड, इसमें भी बाय डायरेक्ट एंड शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड बाय डायरेक्ट एंड शॉर्टकट मेथड। Shortcut method. यस, ये तुम्हारे पास तुम्हारे लिए क्वेश्चन 2 हैं, ये सॉल्व करना। तो कल हम परसों हम उठाएंगे डिस्क्रीट सीरीज, ठीक है? ओके, तो हम Okay, sir. ओके ओके समझ आ गया ना? बिल्कुल आसान सा है। ये मैं उसमें भी लगाऊंगा, ग्रुप में भी मैंने रिकॉर्ड भी किया है। ओके, थैंक यू वेरी मच।